اپنا نام وکیل نہ رکھتا، کار ساز، مدد کرنے والا، لوگوں کو گائیڈ کرنے والا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارا کام بالکل عین عبادت ہے اگر ہم اسے بنائیں، اگر نہیں تو پھر اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ یقینی بات ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، اگر آپ نے کوئی پیسہ نہیں لیا، کچھ نہیں لیا، ایک آدمی کو صحیح راستہ دکھا دیا، صحیح مشورہ دے دیا، صحیح بات بتا دی، آپ نے بہت بڑی نیکی کما لی۔ اور ساری چیزیں ریٹرن اللہ تعالیٰ پیسے کی صورت میں نہیں کرتا۔ آپ کو بتائیں کس تکلیف سے، کس مشکل سے بچا لیا اس نے، آپ کی اولاد کو کس مشکل سے بچا لیا۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ پیسے والے جتنے بھی ہیں یہ سارے بس پیسے کی وجہ سے بڑے پرسکون ہوتے ہیں؟ کامیاب وہ شخص ہے میرے نزدیک، مطلب آپ سب کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، میرے نزدیک کامیاب وہ شخص ہے جو مطمئن ہے اور پرسکون ہے۔ اور الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں اور بہت پرسکون ہوں۔ یہ اللہ کا خاص عنایت ہے۔ اگر آپ کو اس میں بہت ساری چیزوں سے بچا کے اور بہت اپنی چیزیں نہ دے کے پرسکون رکھا ہوا ہے تو اس نے آپ پہ کرم کیا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں دے کے آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، آپ کے کسی قریبی کو، عزیز کو، تو وہ پھر نعمت تو نہیں ہوگی، وہ تو آپ کی بس بھاگ دوڑ ہی ہوگی۔ دیکھیں، یہ بار وہ واحد چیز جگہ ہے جو آپ کو ساری چیزیں دے دیتی ہے پہلے دن ہی۔ آپ آئے، آپ کو رسپیکٹ بھی دے دی، آپ کو لوگوں سے ممتاز بھی کر دیا، آپ کو عزت بھی مل گئی، آپ کا سٹیٹس 20 اور 30 سال پرانے وکیل کے برابر کر دیا۔ کبھی آپ کو کسی نے پوچھا کہ بار میں بھائی آپ یہ 30 سال والے بیٹھے، آپ شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، کوئی ایسی جگہ کوئی مجھے بتا دیں، فوج میں بتا دیں، کسی جگہ بتا دیں جو کہ 30 سال والا تجربے والے کے ساتھ 1 سال والا بچہ بیٹھ جائے۔ نہیں، دیکھیں یہاں ڈسٹنکشن ہو ہی نہیں سکتی نا۔ آپ بھی وکیل ہیں، یہ بھی وکیل ہیں۔ کامیاب وکیل کون ہے؟ سوری، میرے نزدیک کامیاب وکیل وہ ہے جو چاہے 1 سال کی وکالت ہے، 30 سال، میں نے خود دیکھا بھی ہے، تفصیل اپنا تجربہ بھی کیا ہے اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ وہ بچہ، وہ وکیل جو اپنا کیس مکمل تیار کر کے اس دن آئے گا، اس بریف کو تیار کر کے لائے گا، وہ 30 سال کیا 35 سال 50 سال والے وکیل سے نے تیاری نہیں کی ہوئی، وہ اس دن فیل ہو جائے۔ ہمارا روز ٹیسٹ ہوتا ہے۔ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے بابا آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، میں کہا بیٹا میں کیا کروں، میں نے کام وہ لے لیا جس میں میرے روز پیپر جا کے دینا ہوتا ہے، میں تیاری نہیں کروں گا فیل ہو جاؤں گا۔ روز آپ کے پاس نیا بریف ہے، روز نئی بات ہے، نئی پروپوزیشن، آپ جس دن تیاری نہیں کرو گے آپ فیل ہو جاؤ گے، اس دن آپ کو امبیرسمنٹ ہوگی۔ جس دن آپ نے تیاری کر کے مکمل کیس کر کے جاؤ گے، آپ کیس ہار بھی جاؤ گے، آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کرو گے۔ آپ ساروں کو تجربہ ہوتا ہوگا، جس دن آپ کیس اپنا جیت جاتے ہو آپ کا وہ پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ جس دن کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے، آپ کی تیاری نہیں ہوتی، آپ کسی دن کوئی چیز رہ جاتی ہے اور کورٹ میں جا کے جب جج صاحب پوچھتے ہیں یا دوسرا وکیل اس کو آرگو کرتا ہے، آپ کو پھر امبیرسمنٹ ہوتی ہے اور آپ پھر اس دن میں کہتے ہو یار آج یہ بات رہ گئی۔ تو ہمارا تو روز ٹیسٹ ہوتا ہے، روز تیاری کرنی پڑتی ہے۔ بس وہ اچھا وکیل ہے جو مکمل تیاری سے جاتا ہے۔ تیاری سے جائیں گے
آپ کامیاب ہیں. اور کامیابی تو پھر پرماننسی تو نہیں ہے کسی چیز میں, فیلئر بھی ہے. جس دن کا آپ تیاری نہیں کی اس دن فیلئر ہے. اب کوئی بوریت صرف دو کنکلوڈ کر دی, کیونکہ شاید میں زیادہ بول گئی, اس لیے معافی چاہتا ہوں. مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا کہ کتنا ٹائم کیا کرنا ہے, تو میں معذرت چاہتا ہوں. کیونکہ آپ نے کہا کہ میں کچھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور اپنا بھی دل کا غبار جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں, بلکہ آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہوں گا, پوچھنا بھی چاہوں گا کہ بھئی یہ کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو بس میں جو جتنے بھی چھوٹے میرے بھائی ہیں, بچوں کے برابر ہیں, ان سب سے گزارش ہے بیٹا, جو چیز آپ کو کوئی ایک انسٹیٹیوشن دے رہا ہے نا, تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس انسٹیٹیوشن کو کیا دوں, اور وہ آپ اپنی شخصیت سے دے سکتے ہیں نا, اپنی قابلیت سے, اپنی محنت سے, اپنے اخلاق سے, اپنے بڑے بزرگوں کی رسپیکٹ کر کے, یہ ساری چیزیں آپ ان کو ریٹرن کرتے ہیں اپنی بار کو. اور جب یہ کلیکٹیو ایفیکٹ جو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس بار کا امیج ریز ہو جاتا ہے. بار کوئی, میں نے جیسے کہا نا, کوئی بلڈنگ کوئی ایسی کوئی حیثیت کی چیز نہیں ہے, فزیکلی میٹر نہیں ہے, لیکن جب ہم سارے مل کے اس بار کا حصہ ہے نا, جب اپنے ایفرٹ کرتے ہیں تو اس بار کا امیج ریز ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمت طاقت دے کہ ہم اپنی اس بار کا, جس طرح ان بزرگوں نے امیج ریز کرنے میں اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے, ہم بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے, اچھے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے زینی صاحب نے شروع سے ریسٹرکشن یہ لگا دی ہے کہ میں اچھے والا گزر اپنا ایکسپیرینس میں شیئر کروں. ایک چیز جو مجھے یہاں پہ اچھی لگی, میں نے پاس سے اس بیٹھک میں پہلے دفعہ آ رہا ہوں, میں نے سب یہاں پہ کافی ذہن میں پروگرام ہوئے ہیں تو میں نہیں آ سکتا. تو یہ چیزیں ہم جب جونیئر تھے ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھی. ہم جب سینئر شیخ صاحب بیٹھے ہیں, بڑے ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں, ہم جب یہ جو شخصیات نظر آ رہی ہیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ باہر ہو بیٹھے ہیں. بلیو کیجیے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان سے سیکھتے بھی تھے, ان سے گپ شپ بھی لگاتے تھے, بلکہ یہ ہمیں انٹرٹین بھی کرتے تھے. اور ہمارے پاس جب کوئی پروپوزیشن آتی تھی ہم ان سے ڈسکس کرتے تھے, اور ڈسکشن سے یہ بڑا فائدہ ہوتا تھا کہ ہم کوئی چیز تیار کرتے تھے تو وہ بڑی پرفیکشن قسم کی ہوتی تھی. یہ نالج جو ہم نے گین کیا نا, ہم نے ان لوگوں سے گین کیا, ان لوگوں سے ڈیبیٹ کر کے گین کیا, ان لوگوں سے ڈسکشن کر کے. اور ڈسکشن ایک ایسی چیز ہے, ڈسکشن ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ آپ کا جو پروڈکٹ کام کریں, ڈسکشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی پروپوزیشن آپ کے پاس آتی ہے, جب آپ ڈیبیٹس کرتے ہیں یا کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو وہاں سے آپ کی چیزیں نئی نئی چیزیں گیدر کرتے ہیں. میں مائنڈ ہوں نا, میرے پاس ہر چیز نہیں ہو سکتی, میرا ہر چیز کے اوپر گرپ نہیں ہو سکتی, میرا ہر چیز کے اوپر نالج نہیں ہو سکتا. میں جیسے کسی اپنی ینگ فرینڈ سے بھی بات کرتا ہوں, بعد میں وہ ایسی بات کر دے گا جو مجھے کلک کرے گی, یار اس کی بات بڑی اچھی ہے. اس لیے ہم جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, جیسے شوکت بھائی نے کہا, مجھے بڑی میری, میں آپ کو پہلے سب سے پہلے بتا دوں, جب میں نے چیمبر جوائن کیا جو زمر صاحب کا نا, تو میری یہ بڑی مشکل تھی کہ مجھے 2-3 ایسے سینئر ملے کہ جو تینوں بڑے مین تھے. مطلب شوکت اور صدیقی صاحب تھے, طلب زینی صاحب تھے اور مشتاق صاحب تھے. جب میں نے جوائن کیا, مجھے جب بھی کوئی پروپوزیشن یا میرے پاس کوئی ہوتی تو مجھے یہ لوگ بڑا گائڈ کرتے, اور میں نے ان لوگوں سے واقعی لرن کیا. اور اتفاق دیکھیں, میں آج بھی جب کسی ایسی پروپوزیشن میں پھنستا ہوں تو میں ان لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں, زینی صاحب سے کرتا ہوں, شوکت صاحب سے کرتا ہوں, ان بھائیوں سے ڈسکس کرتا ہوں. اور یہ ڈسکس کرنا کوئی آر نہیں, ڈسکس کرنا کوئی بری بات نہیں. ڈسکس کرنے سے آپ بہت سی چیزیں گین کر سکتے ہیں. یہ جو محفل اس قسم کی بناتے ہیں, ہم کچھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, یا ہم اپنے کچھ کمنٹس آپ کو کر جاتے ہیں, یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے جو فیس کی ہیں یا ہم نے جو چیز طریقے سے سیکھا ہے, آپ بھی سیکھیں. ورنہ اس قسم کی محفل میں وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, میں اس کو ذہن میں میں بہت سمجھوں, جیسے قتیل چھپائے کا ایک شعر ہے نا
कतील वसल के ये ज़माने हंसी भी हैं तवील भी हैं, मगर लगा है दिल को धड़का कि कोई ने मुख्तसर न करे। तो विसल ये विसाल है, ये मिलना है, इसी तरह मिलते रहें, बैठते रहें, गपशप लगाते रहें। ये दो चीज़ें देती हैं, एक तो नॉलेज देती है, दूसरा आपके दरमियान एक इंटरेक्शन बढ़ाती है। हम ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं या जितने आप लोग बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे एक इंटरेक्शन बढ़ता है, और ये इंटरेक्शन हमारी इस फील्ड के लिए बहुत भी, जिस तरह अभी बताया कि शेख साहब जैसे, अब मैं जब बहुत जूनियर यानी ज्वाइन किया था तो शेख साहब उसमें तो शायद बार प्रेसिडेंट, अटक बार के प्रेसिडेंट होते, यानी इतनी बड़ी शख्सियत आपके सामने बैठी, इतने बड़ा शख्स बैठा जिसमें शायद हमारी एज के करीब शायद करीब एज इनकी प्रैक्टिस होती, इनकी प्रैक्टिस ही होती। ये लोग हमारे एहसास हैं, जैसा मैकेनिक से बैठे होते हैं और उठ के चले गए, सिविल साइड का वही एहसास है, ये लोग एहसास हैं, हाजी साहब आगे, ये लोग एहसास हैं, आप इनसे सीख सकते हैं, आप इनसे बात करें, आप इनसे डिस्कस करें अपनी प्रोपोजिशन, क्योंकि बेसिकली लॉ एक ऐसी चीज़ है जो आप कहते हैं ना कि सीखते रहते हैं, ये अमल कभी ख़त्म नहीं होता। और आप जब भी जाते हैं फील्ड में, हर वक्त आपको एक नई चीज़ आएगी, नई प्रोपोजिशन आएगी। हम 25-30 साल से प्रैक्टिस करने वाले बैठे हैं, हमें हर वक्त भी जब भी हमको नई चीज़ आती है तो हमें एक नई प्रोपोजिशन मिलती है। इसलिए कि लॉ हर वक्त ग्रो कर रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन इसलिए आ रही होती है कि वरना तो कहते हैं लेजिस्लेशन में 4-5 लाइनों की एक सेक्शन होती है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन से, उसकी इंटरप्रिटेशन इतनी है कि हमारी बुक्स, ये लाइब्रेरियाँ हमारी बड़ी पड़ी, और ये बड़ी जो पड़ी है उनको असिस्ट करने वाले ऐसे लोग जिनका एक्सपीरियंस है, जिनका इनपुट है उनके अंदर, इनका उस इनपुट से आज हम फायदा उठाते हैं। इनका इनपुट एक शेप में आता है, एक बुक की शेप में बनता है, और वो बुक की शेप में जब हमारे पास वो नॉलेज आता है, तो वो नॉलेज जैसे मेरे पास अगर आ रहा है, मैं तो खैर जूनियर हूँ, मेरे से सीनियर फ्रेंड्स बैठे हुए, तो ये चीज़ें आपको हम अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम कोई लेक्चर देने जैसे शोभा भाई कहता है, हम तो आपको लाभ में लेक्चर नहीं दे सकते, इसलिए कि हम नहीं समझते कि हम कोई परफेक्शनिस्ट हैं, ये इतने बहुत बड़ा है कि हम आपको एक अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकते। हम यहाँ पे बताने सिर्फ एक्सपीरियंस ये आते हैं कि आप यंग लड़के, जो भी आप यंग लड़के या यंग लड़के जो इस फील्ड में आ रहे होती है, खास कर यहाँ पे मायूस मत हो। मैं भी जब 3 साल पहले आया था, मुझे याद है मैं 2-3 साल पहले, जब मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, जब मैं नया नौकरी बना तो 2-3 साल पहले तो अर्निंग बिल्कुल नहीं होती। आप लोगों ने भी ये चीज़ें फेस की होंगी, अर्निंग नहीं होती, सिर्फ लर्निंग ही होती है। अर्निंग बंदा कहता मैं किस फील्ड में आदमी यार, ये तो 2-3 साल ही तो मैं किसी जगह जॉब करता हूँ, कुछ पे तो नहीं थी। ये एक्सपीरियंस शुरू से होता है, लेकिन इससे हम मायूस नहीं हैं। अगर बस एक प्रोपोजिशन आती है, एक सूट आता है, एक सूट आकर कितने सूट बनाते हैं, जस्ट इस तरह के आपने उसमें इतना अच्छा इनपुट दिया हो कि वो क्लाइंट जिसने आपको केस किया वो 10 बंदे को रेफर कर दे, इसलिए कि आपका इनपुट इतना अच्छा होना चाहिए, आपकी उसके अंदर ग्रिप इतनी होनी चाहिए, आपका प्लीडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो प्लीडिंग आपको ना वो चीज़ बाद में आप लूज भी करते हैं। ये मत सोचिए कि आपने लूज कर दिया तो कोई बहुत बड़ी, उस लूज करने से भी आप सीखते हैं। ये ध्यान रखिए, जब आपको चीज़ आती है, कोई प्रपोजिशन आती है, कई दफ़ा आप बिल्कुल नहीं कर पाते या किसी वजह से केस आपका लूज हो जाता है। बिलीव कीजिए, आप इसमें अगर थोड़ा सा डालिए तो उस लूज करने वाले आप ये सोचेंगे कि मैंने किस पॉइंट पे अपने आप को मुझे डाउट हुआ, जहाँ में आप उस पॉइंट पे दोबारा आप कभी जिंदगी में सही तैयार हो तो दोबारा कभी मार नहीं पाएंगे। इसलिए ये फील्ड ऐसी है कि हर वक्त आपको फेस करना पड़ता है। जैसे छोटा सा कह रहे थे ना अभी, कि छोटी इनको कहती है बेटी के पापा हर वक्त पढ़ते रहते हैं, रीजनिंग के हर वक्त यहाँ पे डेवलपमेंट होती है इन शेप ऑफ लॉ, इन शेप ऑफ प्रेसिडेंस, जो हम यहाँ पे साइटेशन देते हैं, इन दैट वेरी शेप हर वक्त यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। और हमें इस डेवलपमेंट की डेफिनेटली हमें पढ़ना इसलिए पड़ता है कि हम उस नई लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी इसमें होती है, जिस तरह अभी लॉ में भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए कि अब लॉ में जो हमने शायद इस दौर में पढ़ा था उसमें ना कंप्यूटर था ना कुछ, हम तो लैपटॉप उसके ऊपर बैठे होते थे, टाइपराइटर से कोई केस टाइप का। अब लैपटॉप का दौर है, इतना लेटेस्ट है, अब अपने सेल फोन के अंदर सारी आपकी रखी होती है, पहले रखी हुई ये चीज़ें। इन चीज़ों से आपने जब इलम लेना है तो यही चीज़ें आपके इस फील्ड के अंदर इनहांसमेंट आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है, और फील्ड बहुत हमारी बड़ी हो रही है। ये मत समझें ये बड़े, हमने भी शुरू से शेख जी वकील बहुत ज़्यादा हो गए, वकील बहुत ज़्यादा हो गए, लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा है।
इसलिए ये मत सोचेंगे आपको या आपको डिस्करेज इस पॉइंट यूज करते जी तो आप क्या करेंगे मैं बताऊँ इतना खूबसूरत प्रोफेशन है, बिलीव करें ये वाइड प्रोफेशन है जहाँ आपका कोई सीनियर आपका कोई आप किसी की सबॉर्डिनेट नहीं होगी। मैं बिलीव करो मैं हूँ या मेरे भाई हैं या मेरे ये दोस्त बैठे हैं आपको आप बिलीव करें सबॉर्डिनेशन जहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है कोई डिक्टेटर या कोई इस किस्म का आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आपका माइंड कह रहा हो ये गलत कह रहा है आप उसे रेजिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि आपका वजह ये है कि वहाँ से सबॉर्डिनेट ये वहाँ फील्ड है इतना खूबसूरत फील्ड है आप इंडिपेंडेंट काम करते हैं अपनी मर्जी से काम करते हैं अपनी चॉइस से काम करते हैं और अपने आप को मैनेज करते हैं। हाँ आप जितना अच्छा काम करते जाओगे डेफिनेटली आपकी लाइफ थोड़ी सी इसमें कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बढ़ती जाएगी आपकी प्राइवेट लाइफ थोड़ी कम होती जाएगी क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे बढ़ेंगे जितना ग्रो करेंगे इस फील्ड में आपके पास ये चीज़ें इम्प्लीकेशन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी जब बहुत ज़्यादा आएंगी तो डेफिनेटली आपकी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा होगी ये प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन को आप इंजॉय करें। बहुत सी आपने अपनी प्राइवेट लाइफ को इसको ख़त्म करते हैं इसी वजह से करते हैं आप प्रोफेशनल लाइफ को अपनी इंजॉय करें। जब जिस दिन आपने इस फील्ड को ऐसे इंजॉयमेंट लेना शुरू कर दिया आप नई नई प्रोपोजिशन से इंजॉयमेंट लेंगे आप बिलीव कीजिए आप सक्सेसफुल होंगे कभी कभी नाकाम नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आपने इसको पेन समझना शुरू कर दिया जिस दिन आपको टेंशन लेनी शुरू कर दी कि यार ये क्या फील्ड है मैं क्या करूँ हर वक्त हसरत हुई तो फिर डेफिनेटली आप सक्सेसफुल नहीं होंगे आप क्योंकि आप उसको इंजॉय नहीं कर रहे आप उसे एज ए पैशन अडॉप्ट नहीं कर रहे आप उसे एज ए पैशन अडॉप्ट करें कि मैंने ये काम करना है ये मेरा काम है ये मेरा जॉब है मैं इसी के अंदर रहना है और मैंने इसी स्कोप के अंदर वर्क करना है और मैंने अपने आप को ग्रो करना है। मैंने कल शेख साहब ने बनना है मैंने हाजी तौफीक साहब बनना है मैंने और जितने मुझे कैदी साहब बनना है या और जितने ये लोग ये पिक्चर्स में नजर आते हैं मैंने ये बनना है। आप एक रख लेंगे अपना टारगेट रख लेंगे जब आप अपने टारगेट रखेंगे तो डेफिनेटली कि मैंने ये चीज़ें सारी सीखनी और मैंने अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचना। जब यहाँ तक आप पहुँचना है तो फिर आपको ये चीज़ें आपको हार्ड वर्क करना होगा उस हार्ड वर्किंग में आपको जो है ये आपको हर किस्म की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बाकी मेरे ख्याल में मेरे बड़े भाई बैठे हैं दोनों एक तो गली साहब भी मेरे सीनियर है मैं इनका भी जूनियर हूँ और मैं शोको साहब को भी जूनियर तो जब मेरे दोनों सीनियर बैठे हुए तो उन सीनियर के सामने ज़्यादा बोलना कुछ इतना अच्छा नहीं होता। मैंने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया या मैंने जो अपनी डिफ़िकल्टीज देखी जब मैंने जब इनिशियल पीरियड में देखा वो मैंने फेस की वो मैंने आपको बताया शेयर की। मैंने ये बताया जो मैंने जिस तरीके से सीखा या मैंने जिस तरीके से इस फील्ड में ग्रो करने की कोशिश की। मेरा क्लास फेलो बड़ा प्यारा सा क्लास फेलो बैठा हुआ है हम जवाद खालिद हम सारे इकट्ठे में बाकी हमारे चैम्बर से बात करें तो हमारे फुटबॉल साहब भी हमारे चैम्बर फेलो थे हम एक ही सेक्शन के पढ़े हुए सारे जवाद खालिद और मैं एक ही सेक्शन के पढ़े हुए। हम जब सारे इस फील्ड में आए थे तो नए नए जब आए थे तो हमें यही होता था कि हम सारों जो हम लोगों ने जब सीखा इन जैसे सीनियर बड़े बड़े भाई थे ना इन लोगों से बैठ के साथ इन लोगों के साथ वर्क करके सीखा। और ध्यान में रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा सीनियर जो आपको होता है बॉस हो सकता है आपको होना सिखा सके लेकिन आप जो इमीडिएट जूनियर सीनियर होते हैं 4 5 6 साल 7 साल प्रैक्टिस वाले वो आपको ज़्यादा सिखाते हैं इसलिए कि आपकी इंटरेक्शन उसके साथ ज़्यादा होती है। आपका इमीडिएट जो सबसे बड़ा सीनियर होगा ना उसकी 20-25 साल बड़ा वो इतनी आपको पेशेंट में इतना ज़्यादा मसरूफ होगा शायद वो आपको इतनी ज़्यादा बातें एकदम आपको करो लेकिन आप मुझे ये एक्सपीरियंस मुझे बड़ा अच्छा मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब फील्ड में आया तो मेरे से इमीडिएट सीनियर थे शोकत साहब और जनी साहब मुझे कोई पोजीशन इसका मुश्ताक साहब हमारा थोड़ा रिटायर इसलिए हो गया थोड़ा सा फील्ड से आउट हो गया आप वापस आ गए ये हमारी दोबारा कुछ दी कि उन्होंने दोबारा हमें ज्वाइन किया बिलीव कीजिए तो मैं इन लोग से डिस्कस करता था एक एक चीज़ जब मैं कोई ड्राफ्ट बनाता भी था फिर सिर्फ डिस्कस करता था फिर ये मौजूद करता था इसमें चेंज करो और उसको ड्राफ्ट कराना ज़्यादा मुश्किल थी जिससे टाइपिंग करानी पड़ती थी। अब तो खैर कंप्यूटर में आपने डिलीट करना जिसका कहना वो सब कुछ बड़े ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें आप एक ध्यान में रखिए कि चीज़ें हमेशा आपको प्रपोजिशन आपके पास आएगी सीखना आपने डिस्कशन से है डिबेट से है लॉ से सीनियर से कंसल्ट कीजिए दोस्तों से कंसल्ट कीजिए। हम थोड़ा सा लिमिटेड नॉलेज है जो हम किसी को बता सकते हैं हमारी रियली खुशी होती है। और बिलीव मुझे तो खैर अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस हुआ मैं प्रेसिडेंट बार को बनना जरी सर सिर्फ 1 साल पहले बना तो जितना यंग्स ने जितना आप सब लोगों ने प्यार दिया और जिस तरह आप मेरे से चले तो मैं अपने आप को यंग फील करता हूँ इनकी तरह बुजुर्ग फील नहीं करता इसलिए कि ये मेरे दोस्त जो बैठे मुझे एक साथ उठा दिया गया ये दोनों मेरे बड़े दोनों मेरे बुजुर्ग हैं आई एम क्वाइट यंग लाइक यू। तो ये चीज़ है कि अपने आप खुश रखिए
फील्ड से इंजॉय कीजिए, टेंशन ना लीजिए। मुझे भी कई लोग कहते हैं आप हमारे पास मुस्कुराते क्यों रहते हो, मैं कहता मैं टेंशन सवार नहीं करता, मैं डिस्कशन करता अपने आप ही पोजिशन के साथ जाता हूँ। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये एक्सपीरियंस शेयर करने की बात नहीं है, डिबेट्स में लॉ पॉइंट्स पे तो बात करनी है। मैंने अपना एक्सपीरियंस ये शेयर किया कि मेहनत कीजिए, इस फील्ड में बड़ा कुछ है, इकोनॉमी के लिए कभी आप मार नहीं खाएंगे किसी, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़, इससे टाइम से जो है ना उसको आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे जवाब खाला साहब को सिग्नल भी दे रहे हैं, शायद वो बोर हो रहे हैं जाना चाह रहे हैं, तो मैं सिर्फ आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ। कल जरी साहब ने मुझे कहा कि आप ऐसे को होस्ट हैं और वो भी मेरे अपने सीनियर के साथ, अब ये मेरी खुशनसीबी है। और दूसरी भी कितने प्यारे प्यारे बड़े बड़े सीनियर मेरे दोस्त बैठे हैं, आयशा बैठे हैं, शीशा बैठे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि हमें आप सुना, हमारी थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस हमारी जो था हमने आपसे शेयर किया, आप उसे दामन से सुना, मैं बहुत उदाई हूँ, बहुत शुक्रिया। तो दोस्त जवाब खालिद साहब का सवाल है, माइक दे देना जी मैं मुझसे अब सवाल ना मैं तो ज़्यादा देते नहीं, आपसे करवाना पड़ता है। मैं रिजवान से नहीं करूँगा, लेकिन मैं रिजवान से करूँगा तो जवाब ऐसा है कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं सवाल शौकत भाई से करना चाहूँगा, और सवाल कुछ इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ नौजवान दोस्त नहीं, आज आपकी वजह से बहुत सीनियर है बाप भी बैठे हुए हैं, शेख साहब यहाँ पर, शेख असदुद्दीन साहब और अबूल शाह जनवा साहब जैसे सीनियर्स का यहाँ पे मौजूदगी इस चीज़ को साबित करती है कि शौकत भाई आपसे और रिजवान से बहुत मोहब्बत करते हैं। शौकत भाई एक बात जो आपने नहीं कही, जो मैं समझता था आपको कहनी चाहिए, वो ये कि जिस वक्त आप अहबाब थे, आप थे, तलत भाई थे, आप बाद में आए, तो आपने आपसे थोड़े से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था हमारा आपस में, अगर आप थोड़े से कम आपसे जूनियर्स के सीएस से आए, तो आपने हमें जिस वक्त भी आपने हमें किसी गलत ट्रैक की तरफ जाते हुए देखा, या आपने फील किया कि नहीं इसकी प्रोपोजिशंस प्रॉपर्ली ये डिस्कस नहीं कर रहा, तो आप फौरी तौर के ऊपर रोकते हुआ करते थे और गाइड किया करते थे आप भी। और मैं तलत जैसा पूछा इसीलिए कहता हूँ बटा उस्ताद के, जब कभी भी जरूरत पड़ती थी इनको तंग करते थे, बैठा लेते थे, आप फिर भी नहीं होते। तो क्या ये वाली बात अगर आप शेयर कर ले अपने दोस्तों से कि जो इनसे इमीडिएट सीनियर है, जैसे यहाँ पे मैं सिंधु को देख रहा हूँ, तो सिंधु के साथ आप यहाँ पे आप इन्हीं के चैम्बर से बहुत सारे यंगस्टर्स भी मौजूद हैं, तो क्या इनको ये नहीं चाहिए कि जो यंगस्टर्स हैं जो सिंधु से 2 साल 3 साल 4 साल यंग है, तो वो सिंधु का पल्ला ना छोड़े, इसको पकड़ी रखे, इसको ताई से भी पकड़े और इसको बोर्ड से भी पकड़ कर रखे कि भाई आपने हमें ये सारी बातें बतानी और हमें सिखाना है जो सीखा है। ये बात आपकी तरफ से स्पेशली आपकी चैम्बर में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये बात आपको कहनी भी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? वैसे तो जवाहर खान कभी रुका नहीं। देखिए ये सीखने और सिखाने वाला अमल जो है ना, ये जो डिस्कशंस होती है आपस में, हम भी जब आपस में भी किसी प्रोपोजिशन में फंसते थे तो दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब दोस्तों को पता होता है तो हर दोस्त अपने अपने सीनियर से भी फिर वो पूछ लेता था, फिर अगले दिन आके वो बताता था कि जनाब मैंने तो अपने सीनियर से ये बात की तो उसका ये हाल है। हम आपको कोई भी चीज़ डिस्कशन से उसका हल बेहतर मिल जाता है जब भी आप रब्ता करते हैं। और ये डिस्कशन के लिए सीनियर जूनियर की कोई कैद नहीं है। अभी हम बाहर उधर जैन साहब के कमरे में बैठे हुए थे प्रेसिडेंट के, तो मैं ये कह रहा था कि कैसर जो है ना मेरा यंग दोस्त है, तो मैं कह रहा था ये मेरा उस्ताद है। मैंने कहा ये कैसे आपके उस्ताद है? मैंने कहा भाई इससे मैंने सियासत में ये मेरा मैं से उस्ताद मानता हूँ, मेरा उस्ताद है तो सीख रहा हूँ। तो और वाकई ये इस क्रेडिट गोज टू हिम। तो इसलिए दोस्त जो होते हैं ये हम हर चीज़ें, तौफीक आसिफ भाई इधर बैठे हुए तो इनसे भी डिस्कस करते थे आपस में। जब आप डिस्कस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। तो डिस्कशन का वो कहते हैं ना सियासत में जो है राब्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए वकीलों को आपस में डिस्कशन प्रोपोजिशन दोस्तों को आपस में ज़रूर करनी चाहिए, तो वो बेहतर हल निकल आता है उसका। और वैसे जवाब मुझे ये ज़ैदी भी कह रहा था कि रिजवान आज पता लगा कि 2 साल में बंदा बुजुर्ग हो जाता है।
ਇਹ 94 ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ 92 ਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੀ- ਆਗੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। अच्छा ये बात ऐसी है कि मैं बाद दफ़ा मुझे जब मैं खासकर कुंदवाल हो गया या जवाद खालिद से मिलता हूँ तो लोग मुझे जब मैं इनको बताता हूँ ये मैंने क्लास कर रहा हूँ तो वो सारे वो शक करते हैं। मैंने उन्हें ये बताया था जब मैं आया था ये बड़े थे मैं छोटा था, इसलिए ये बड़े बड़े थे मैं अभी इसलिए मैं अभी आई एम स्टिल यंग। बाकी जहाँ तक लगे डिबेट्स में बड़ी अच्छी बात है, हमेशा हम बताया ना हमने कैसे सीखा, हमने भी तो सीनियर से ऐसे ही सीखा ना कि हम जब कोई प्रोपोजिशन आती थी ना हम 4-6 सीनियर से जाकर डिस्कस करते थे, सर ये बात आप बताइए इसमें क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, वो भी फिर रेफर करते थे। ये चीज़ें ये हमारे इस अभी जो हमारा चल रहा है इसमें कम हो गई है और ये बैठक ये इसी सिलसिले में ये मेरे ख्याल में एक उसी की कर रही है कि ये चीज़ें दोबारा बढ़ाएं। एक तो इंटरेक्शन बढ़ता है बच्चों का सीनियर के साथ, दूसरी चीज़ें आप सीखते हैं, इसी तरीके से सीखेंगे। आपको प्रोपोजिशन है कि मैं मेरे पास प्रोपोजिशन आती है, मैं शेख साहब के पास जाता हूँ, सर ये प्रोपोजिशन आप बताएं इसके बारे में आप क्या कहते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताएंगे तो मुझे कुछ चीज़ें रेफर करेंगे। ये चीज़ें ऐसी जैसे मेरे पास तो मैं जैदी साहब के पास चला जाऊँ, मैं क्रिमिनल साइड का एक बंदा एक्सपर्ट आदमी है और एक मतलब आप समझे कि एक इंसाइक्लोपीडिया है क्रिमिनल साइड, तो हमें इनसे सीखूंगा, मैं इनसे पूछूंगा यार जैदी साहब ये प्रोपोजिशन आप बताएं इसके बारे में आपका क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ें ऐसे ही आती हैं और आप लोगों को इसमें कोई शाये नहीं होना चाहिए। और बिलीव कीजिए एक जो सिखाने वाला है ना उसकी भी अपनी नॉलेज बढ़ती है, ये नहीं है कि वो उसकी नॉलेज नहीं बढ़ती, ये उस जो सीनियर जिसके पास डिस्कशन के लिए जा रहा है उसको भी ये फील होना चाहिए कि यार इसकी इस प्रोपोजिशन से उसका अपना नॉलेज भी ग्रो करता है और ये होना चाहिए और ये डिबेट चलनी चाहिए, इस तरह के आप लोगों की बैठकें होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हसन असगर भट्टी साहब को सवाल। मेरा सवाल शौकत साहब के लिए कि जो आपने हमारी जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है इसके बारे में जो काफ़ी सारी बातें आपने की, यू हैव बीन अ लॉ ऑफिसर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन, तो उस बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते रहे बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और फिर उसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस बारे में थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। मैं ना ये बात करना भूल गया था, आपने बहुत अच्छा किया। पहली बात मैंने की थी ना कि वी आर ब्लेस्ड वन कि वी आर मेंबर्स ऑफ द रावलपिंडी बार। मैं अगर रावलपिंडी बार का मेंबर ना होता और ऐसे आप जैसे सारे कोलीग्स ना होते तो शायद मैं अपना वो जो जॉब है वो कर ही नहीं सकता था। इस बार ने इतना कुछ सिखा दिया था कि वहाँ जाके कोई एहसास ही नहीं हुआ कि कोई बल्कि बोरियत होती थी कि बस ये काम है एक केस। अब जैसे मेरी ज़्यादा पोस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में रही, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ ये होता है कोर्ट्स का आपको केस मार्क हो जाते हैं, एक केस हुआ, दो हुए, बहुत ज़्यादा हुआ, 3 से 4 से ज़्यादा केस नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मेंबर ऑफ दिस बार, बीइंग हैविंग सराउंडेड बाय सच ए नाइस कलीग्स, तो हाँ मुझे बस इस बात पे खुशी होती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर भी काम किया एज ए एडिशनल, कैनी साहब के साथ भी किया और सारे दोस्त कैसे भी करता रहा मेरे साथ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। तो मुझे नहीं याद कि किसी जज ने कभी किसी प्रेसिडेंट को बुला के बार के बंदे को बुला के कहा कि आपके लॉ ऑफिसर्स जो है ना वो अच्छा काम नहीं कर रहे। ये एजाज़ है आपकी पिंडी बार का, मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है। मुझे यहाँ से इतना कुछ सीखने को मिल गया था कि मैंने वहाँ जाके वही काम करना, वही वकालत ही करनी है ना, केस तैयार करना है, तरीका बता दिया था उस्तादों ने कि क्या तरीक़ाकार है, वो हम करते थे तो हमें पता लगता था यार वाकई जो दूसरे लोग हैं ना उनसे हम बहुत बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम की वजह से और इधर के आपके माहौल की वजह से, आप लोगों की वजह से, आप लोग इतना टफ टाइम देते हो कोर्ट में दूसरे वकील को लीगली कि वो उसको आप सुधार देते हो, फिर उसके लिए गुंजाइश ही नहीं रहती। अदरवाइज एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो बस वकालत का कोई मैच नहीं है प्राइवेट। मुझे रुजवान कह रहा था ना कि सबऑर्डिनेशन में वकील से काम कोई नहीं होता। जवाबदेही तो हमारी शुक्र है किसी ने नहीं कहा, अगर कभी किसी ने कोशिश भी की उनको पता होता ये पिंडी बार का बंदा है और ये बंदा है, किसी ने जरूरत नहीं की कि ये कहे कि जनाब ये काम कर दो या इस तरह का कर दो, कभी भी नहीं ऐसा हो, नेवर। कोई और सवाल किसी को? मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा बस,
मैंने आपसे कहा था ना कि पुरसकून लाइफ गुजार रहा हूँ, तो दुआ करा करे अल्लाह ताला जो आपको बेटर हाफ दे ना वो आपको समझती हो। मेरी पुरसकून लाइफ गुजारने का एक रीज़न ये भी है कि मेरी मिसेस वकील है, तो वो आप प्रोपोजिशन डिस्कस करते हैं ना, तो हम सोते वक्त सोने से पहले भी ना डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इसमें क्या होगा और कैसे होगा। आपको 25 साल पहले बात बतानी थी। एक और देखें, और फिर एक और ब्लेसिंग इस बार, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर हैं, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं आपको। हारून इरशाद जंजुआ साहब बैठे हुए, अजमल रजा भट्ट, सिंसियर लोग जो आपको किसी मुश्किल में पड़ने से पहले आपको बचा लेते हैं। तौफीक आसिफ साहब हैं, हमें कभी कोई गाइडेंस चाहिए होती है सियासी मामलात में भी, तो ये हमें गाइड करते हैं कैसे करें। तो ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला आपको अच्छे दोस्त दे दे, अच्छे कोलीग्स दे दे, अच्छे साथी दे दे, इससे बड़ी आपको अल्लाह ताला की तरफ से और क्या नेमत चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये बात ज़ेरे उज़र रखी है। हम जैसे लोग क्योंकि महरूम है इस बात से। प्रपोजिशन डिस्कस होती है तो मैं कुछ सोच रहा था, मैंने कहा फिर पुरसकून लाइफ कैसे नहीं देखे ना, मुझे भी एक्सप्लेनेशन ही नहीं देनी होती कि भाई आप इलेक्शन का दौर है आजकल, आप रात को कभी दोस्त के साथ कभी जैदी साहब तो घर भी नहीं जाने देते थे हमें जब इलेक्शन होता था, तो ये एक्सप्लेनेशन ही देनी पड़ती कि 2 बजे कहाँ से आए हो, 1 बजे कहाँ से आ रहे हो, आप फिर किधर जा रहे हो। कोई और सवाल किसी दोस्त को? ऐसा बाकी तो बाजार जाते ना कोर्ट में थे, तो ये तो ये भी नहीं बात करते मैं कोर्ट में था, वो भी चेक हो जाएगा कि इस कोर्ट में थे। थैंक यू वेरी मच हम सर। ठीक रखें। इसको फिर ख़त्म करते हैं और शौकत साहब के लिए सर आए ना आपके। थैंक यू वेरी मच आप सब दोस्तों का।